Hello students, today we are going to continuing our chapter number 8, that is height and distance, with our exercise 8.1. In our previous video I have explained all the concepts about this chapter height and distance, and I already told you please go through the previous videos to learn these formulas regarding to the trigonometry. Those videos will really helpful for you to remember all the formulas. So we will going to further proceed, okay, with our exercise 8.1, our question number 1. Okay, so what our question number 1 is saying in our book, all the students should read: the shadow of a vertical pillar, the shadow of a vertical pillar is same the height of the pillar, is the same the height of the pillar. What the question is saying, that the shadow of a pillar, this is an a pillar AC. Here AC is an our pillar. Okay, he is saying in the question was saying that the height of this pillar, let the height of this pillar AC is an h. Let the height of an AC is equals to the h. Then he is saying that the shadow is also of the same length, like which having the same height of the pillar. So this AB is also be equals to the h. क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस हाइट का पिलर है उसी हाइट का उसका शेडो भी बन रहा है, ठीक है. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी, ये पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा. इफ दिस एच and this AC is equals to the AB, then what will be the angle of elevation? I have already explained you what the meaning of the angle of elevation. The angle of elevations means that when we see upside, when we see any object and we turn and we raises our head into the upside, that angle which we formed with our horizontal line, that angle is called as an angle of elevation. Those students who had not seen my previous video, please go through those previous videos. It will be helpful to you to understand this exercise. Okay, so here the question is saying the what is this angle theta. We need to find here the value of this theta. Okay, so what we have learned here we having that the basic formula is that Pandit Badri Prasad Har Bole. Okay, this term belongs to our sin theta, this term belongs to our cos theta, and this term belongs to our tan theta. Correct. Now here we are having the theta, this B is then theta. I already told you the side which is just opposite to this angle is always be an perpendicular. So this is an perpendicular, and the side which is just adjacent to the angle, that is called is an base, that is called it an base. And this height, the angle which is always opposite to an right angle 90 degree will always be an hypotenuse. Okay, we already discussed about these things. Okay, now here we having the value of the P, perpendicular and base. Which term here we having the both the perpendicular and base. For sin theta we having perpendicular and hypotenuse. cos थीटा में हमें क्या मिल रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मिल रहा है. बट टेन थीटा में हमें दोनों मिल रहा है, परपेंडिकुलर भी मिल रहा है और हाइपोटेनस भी बेस भी मिल रहा है. करेक्ट. सो हियर वी विल बी राइटिंग दैट द टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, our perpendicular upon base. Here what is an perpendicular? Perpendicular is an AC. Correct. Perpendicular हमारा यहाँ पे क्या है, AC है. And what is an our base? हमारे यहाँ base क्या है, base है हमारा AB. Correct. Here what we have let both the values is an H. अगर AC H है तो AB भी H ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जिस हाइट का पिलर है उसी लेंथ से उसकी शेडो भी बन रही है. सो H डिवाइड बाई H, what you will get here, tan theta is equals to the h by h. So h will be cancelled out, we will get here 1. So if you have learned the table values or the ratio values of the trigonometries, then it will be easy for you. So tan theta की कौन सी वैल्यू होती है, थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जिसमें tan theta जो इक्वल टू 1 होता है. We have know that the tan 45 degree is equals to the 1. So here our theta is an equals to the 45 degree. Correct. So our option number A is an correct. Okay.
Now same, the question number second is also the same. Okay, now we having going to the question number our third. Okay, what the question number third is saying here? Question number third is saying that a 15-meter long ladder touches the top of the vertical wall. First we will make a top of a vertical plane. Here this is a top of a, this is a vertical plane. Okay, and he is saying that a ladder is touching to the top of this vertical plane. This is a ladder which is touching to this wall at the top. Okay, and if this ladder makes an angle of 60 degree with the wall, if ये जो ladder है ये कितना एंगल बना रही है इस वॉल के साथ, 60 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, देन द हाइट ऑफ दिस वॉल, तो ये पूछ रहा है इस वॉल की क्या हाइट होगी, हमें ये निकालना है इसके अंदर. ठीक है, इस वॉल की हाइट निकालना है. करेक्ट. सो हियर आई एम गिविंग द नेम्स, दैट इज ए, बी एंड सी. हियर द एंगल विच वी हैविंग एंड दिस, so I have already told the opposite side of an angle is always be an perpendicular, and just adjacent side of this angle is an base. Okay, this side is always be an hypotenuse side. 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो भी साइड होता है हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है. ओके, नाउ हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट द ए बी वैल्यू. ओके, वी नीड टू फाइंड इट आउट हियर द बेस वैल्यू. ओके, सो व्हाट द टर्म वी हैविंग हियर, साइन theta is perpendicular upon hypotenuse, but here we having perpendicular and base. Here what we having, the base and perpendicular, but we need to find it out the base and ladder. Okay, we need here the terms, because in the question it is given that the ladder is an equals to the 15 meter. Okay, हमें यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू जो है दे रखी है, कितनी है, ladder की वैल्यू, ladder is equals to 15 meter, and here we need to find it out, find base, that is AB equals to H. हमें ये चीज़ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक तो H और एक हमें चाहिए B, यानी हाइपोटेनस और बेस वाली टर्म चाहिए. हाइपोटेनस एंड बेस वाली टर्म किस में आती है, कॉस थीटा के अंदर आती है. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपना कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस. करेक्ट, ये कॉस थीटा इज एन इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो व्हाट इज एन अवर कॉस थीटा, हियर कॉस थीटा, थीटा वैल्यू इज एन 60 डिग्री, थीटा वैल्यू इज एन 60 डिग्री. एंड व्हाट इज एन अवर बेस, बेस है अपना ये वाला, हमारा बेस ये है. तो बेस की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बेस की वैल्यू निकालनी है. वी हैड लेट हियर एच, सो एच डिवाइड बाय हाइपोटेनस हमें दे रखा है 15 है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट द आंसर अबाउट द एच. हियर वी गोइंग टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो हियर वी गेट दैट द एच इज 2h is equals to the 15. So h will be equals to the 15/2, correct, meter. So this is an our answer. Okay, so this is an height of this wall. Okay, now in the same way you can solve the question number 4th also. I am going to explaining our the question number 5th. Okay, so what is the question number 5th is saying at here, let us see. Question number 5th is, a bridge above the river makes an angle of an 45 degree with the bank of rivers. एक ब्रिज है जो कि एंगल बनाता है रिवर के साथ 45 डिग्री का. पहले हम एक रिवर बना लेते हैं यहाँ पे. दिस इज एन रिवर विच मेक्स द ब्रिज इज हियर विच मेक्स एन एंगल विथ एन दिस रिवर. Here this is an a bridge and it makes an angle of this 45 degree. Okay, and according to our question, if the length of the bridge above the river is 150, ये बोल रहा है कि इस ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी है, 150 मीटर है. ओके, ठीक है. अगर इस ब्रिज की लेंथ जो कि है, सॉरी पूरी की नहीं है, ये इतनी की वैल्यू दे रखी है इसने 150. ओके, 150 वैल्यू जो कि है इस ब्रिज की, जितना वो रिवर के ऊपर है उतने की वैल्यू दे रखी है इसने 150. ओके,
एंड नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट देन द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, ये पूछ रहा है कि जो रिवर है उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ओके, हियर वी हैविंग एन एंगल, दिस इज एन 45 डिग्री, दिस इज एन आवर हाइपोटेनस, दिस इज एन आवर हाइपोटेनस बिकॉज दिस इज एन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, और हमें निकालना है यहाँ पे दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ से निकालना है। करेक्ट। सो इफ़ आई मेक दिस फिगर हियर, इफ़ आई मेक दिस फिगर हियर सेपरेटली, व्हाट दिस फिगर विल बी, ये फिगर कैसा दिखेगा, हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा ये फिगर। देखो हियर दिस इज एन 90 डिग्री, this is an 45 degree, and here this is an 150 meter. okay, here we need to find it out this h. okay, हमें यहाँ पे ये h की वैल्यू निकालनी है, और हमेशा हमें पता है कि एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो पास वाला होता है वो होता है बेस, एंड दिस इज एन हाइपोटेनस। बट हियर व्हाट द टर्म्स वी हैव नीड हियर, वी नीड द टर्म्स हियर दैट इज एन हाइपोटेनस and perpendicular. okay, so in which we having this perpendicular and hypotenuse, हमें किस में मिलता है, दोनों साइन थीटा के अंदर मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट द साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट, आवर h, एंड हाइपोटेनस इज व्हाट 150 डिग्री, 150 मीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू h बाई 150 मीटर। यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, डैट इज़ 150 डिवाइड बाई √2। नाउ हियर सी वी हैविंग वी कांट्स, हम इस √2 जो डिनोमीटर की जो वैल्यू उसको हम रूट के अंदर नहीं छोड़ सकते, यहाँ क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। सो वी विल गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ √2 एंड सेम डिवाइडिंग बाय √2, व्हाट विल गेट हियर, वी गेट हियर द 150 multiply with √2 dividing by 2, so 2 will be divide this 75 times, so it will be 75 √2. correct. So this is an our height. okay, so our height of the or we can say the breadth, the what the question is saying that the breadth of river is equals to h is equals to 75 √2 meter. correct. So this is an our answer. Now we are going to solve our question number 6. Question number 6, what the question number 6 is saying, the question number 6 is saying that the top of the two towers of height 20 and 14 meter are joined by a wire. एक वायर से, let's first make an two tops of a tower. This is an one tower and this is an our second tower. This height is an of 14 according to our question, and this height is an of around 20 meter according to our question. okay, he is saying that if we join these both the top of these towers by an wire, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। if wire makes an angle of 30 degree with the horizontal line, ये जो वायर है ये 30 डिग्री बनाता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज इन अवर हॉरिजॉन्टल लाइन बाय दिस पॉइंट, और कितना डिग्री बना रहा है ये यहाँ से, ये यहाँ से बना रहा है 30 डिग्री। सो हियर दिस इज मेकिंग 30 डिग्री। व्हाट वी नीड टू फाइंड इट आउट, देन द लेंथ ऑफ वायर, हमें इस वायर की लेंथ निकालनी है। फर्स्ट वी गिव द नेम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई पॉइंट। ओके, now we knew that this horizontal line makes here in 90 degree and we can join this line also at here, है ना, हम इस लाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं हम। गिवन है हमें यहाँ पे ए ई इज इक्वल्स टू दी 14 एंड बी डी इज इक्वल्स टू दी 20 and what we can say according to this figure, we can say that the A is equals to the BC। ओके, ये सब कुछ गिवन है हमें। और क्या गिवन है हमें, दैट द एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू दी 30 डिग्री। करेक्ट। नाउ वी हियर नीड टू फाइंड ई डी, हमें यहाँ पे ई डी की वैल्यू निकालनी, इस वायर की वैल्यू निकालनी है। करेक्ट। ओके, सो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे वायर की वैल्यू। फर्स्ट
हमें देखो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या मिल रखी है, हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। देखो यहाँ से अगर हम देखें, हमको अगर ये वाली पूरी वैल्यू दे रखी है बी डी, क्या दे रखी है हमको यहाँ पे बी डी की वैल्यू दे रखी है। लेट इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, आवर बी डी, what I can say that BD is equals to what, BD is equal to BC plus CD, BD is equals to what, BC plus CD, correct? So we write it here BC plus CD. So if यहाँ पे अगर मेरा BD इक्वल टू BC प्लस CD होता है तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, मेरा BC की वैल्यू किसके इक्वल है, BC का वैल्यू किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। तो AE का वैल्यू क्या है, कितना है, 14 है। सो आई विल पुट एट हियर, एंड BD की वैल्यू कितनी है, टोटल 20 है। तो 20 इक्वल टू BC कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से, BC आ जाएगा मेरा यहाँ से, BC मुझे 14 है मेरा यहाँ पे, क्योंकि वो इक्वल टू AE के है, प्लस CD मुझे निकालना है। तो CD विल बी इक्वल्स टू दी 20 माइनस 14, सो डैट द CD विल बी इक्वल टू दी 6, करेक्ट। तो हमें यहाँ से CD की वैल्यू निकल गई है 6 मीटर्स, हमारे यहाँ पे CD की वैल्यू आ गई 6। मीन्स the angle, the side opposite to the angle is always be in a perpendicular, and we here need to find it out our hypotenuse। यहाँ हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी, तो हमें यहाँ पे क्या क्या टर्म्स मिल गई है, एक तो हमें चाहिए यहाँ पे हाइपोटेनस चाहिए, एंड दूसरा हमें क्या चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए। ओके, यहाँ मीन्स P चाहिए और यहाँ पे चाहिए हमें H। सो व्हाट वी हैव टॉट हियर, मैंने आपको क्या बेसिक फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। So here P by H denotes to our sin theta, B by H denotes to our cos theta, here P by B denotes to our tan theta, करेक्ट। हमें यहाँ पे देखना कि हमारी ये दोनों टर्म्स हमको कौन से फॉर्मूले में मिल रही है, H और P। क्या H और P हमें sin थीटा में मिलती है, हाँ H और P हमें sin थीटा में मिलती है। तो हम वी कैन से दैट द sin थीटा इज इक्वल्स टू अवर P by H। So here sin theta, theta's value is 30 degree and P value is an 6, as we have just find it out the value of this CD divide by H we need to find it, हमें H की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। So what is the value of our sin theta, as we know that the sin 30 degree is equals to the 1 by 2, so 1 by 2 is equals to 6 by H। by doing the cross multiply, what we get here, H is equals to 12। so our length of wire is equals to the 12 meter, correct। so this is our answer। now next we are going to further with our question number 8। what is our question number 8 is saying that, read it, from the top of a 25 meter high pillar, from the top of the 25 meter high pillar। okay, first let us make an this is an pillar, okay, this is an pillar and the height of this pillar is in 25 meter। okay, what the next is saying that at the top of the tower angle of elevation is same as the angle of depression। the at the top of this tower the angle of elevation and the angle of depression is same। ये बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सेम होगा ऑफ द फुट ऑफ द टॉवर देन द हाइट ऑफ द टॉवर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टॉवर, तो हमें इस टू द हाइट ऑफ द टॉवर, ओके, from the top of the 25 meter high pillar at the top of the tower angle of elevation is same। okay, so here we having another tower, that is the this, okay, और यहाँ से ये बोल रहा है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप के लिए वो, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके फुट के लिए, दोनों ही क्या है, इक्वल टू है विथ कंपेयर टू अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, विथ कंपेयर टू अवर हॉरिजॉन्टल लाइन। मीन्स ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, करेक्ट। एंड दिस इज एन आवर बेस लाइन। ओके, सो लेट्स गिव आवर नेम, दैट इज दिस ए बी सी डी एंड हियर इज एन आवर ई, करेक्ट। नाउ if this line and this line both, as we
construct the figure, EC is an parallel to AB. EC जो लाइन है वो पैरेलल है AB के. So we can say that the angle ABE is equals to होगा अपना एंगल BEC के. एंगल ABE will be equal to our एंगल BEC. क्यों होगा एंगल इसके इक्वल? बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Correct? This is our alternate interior angle. So what we will say, this angle B is also equals to our theta. So this angle will also be equals to our theta. Correct? Now if this AE is equals to the 25 meter, then CB is also equals to the AE, because opposite sides are also equal. So we can say that this is an also equal to 25 meters. So AE is equals to the 25 meter. Correct? So this will also be an equals to our 25 meter. Now we need it to find it out this CD. हमें यहाँ पर अब CD वाली वैल्यू अगर निकल जाती है तो हम इस पूरे की टॉवर की हाइट निकाल सकते हैं. करेक्ट? तो हमें यहाँ से फाइंड करना है हमें यहाँ से CD इक्वल टू वॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी हैविंग एन एंगल थीटा एंड दिस. सो फर्स्ट वी विल टेक द एंगल. let we take the first in triangle our BAE, triangle BAE. Okay, so here what we having that in the triangle BAE के अंदर हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है CD की वैल्यू निकालनी है. अगर मुझे यहाँ से इसकी बेस की या हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाती है तो मैं यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ये वाला वैल्यू भी निकाल सकता हूँ. तो पहले मुझे हाइपोटेनस से यहाँ मुझे कैसे मिलेगी, मैं इसका बेस निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से देखो ये इसका हाइट मिल रखा है और AB इज इक्वल्स टू CE के होगा, है ना. एज वी नो डेट द AB इज इक्वल्स टू CE होगा ही होगा, है ना. सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले AB की वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस AB? आई विल पुट एट हियर, दिस इज एन थीटा, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज एन अवर बेस. तो मुझे परपेंडिकुलर बेस कौन से टर्म में मिलती है? टेन थीटा के अंदर मिलती है. तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू माई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज एन परपेंडिकुलर इज एन माई 25 मीटर डिवाइड बाई बेस. बेस की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं बेस इक्वल टू यहाँ पे AB रख देता हूँ. ओके, सो AB is equals to what? 25 by tan theta, and as we know that the 1 by tan theta is equals to our cot theta, so I can write it that the AB is equals to the 25 cot theta. Correct? Now in our triangle ECD, अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ ECD को. इसके अंदर क्या होगा मेरा? tan theta will be equals to, now this will be my n perpendicular and this is my base. Okay, so here I will writing that the CD dividing by CE. Correct? And we know that here as the given that the AB is equal to the CE, so I can write here that the CD by AB. Correct? So here that the tan theta will be equals to the our CD by AB की क्या वैल्यू है यहाँ से? AB की वैल्यू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 AB की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ इसके अंदर क्या है? 25 मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा, 25 कॉट थीटा. सो हियर बाय दिस आई कैन राइट एट हियर दैट दी CD इज इक्वल्स टू माई tan थीटा मल्टीप्लाई विथ 25 ऑफ कॉट थीटा. सो CD विल बी इक्वल टू माई tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 25 कॉट थीटा को हम क्या ले सकते हैं? 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं. tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा. CD विल बी इक्वल टू अवर 25 मीटर्स. ओके, तो हमें CD की वैल्यू मिल गई है एंड वी नीड टू फाइंड इट आउट BD. हमें यहाँ से BD की वैल्यू निकालनी है. BD इक्वल टू क्या होता है अपना? BC प्लस CD होता है. सो BD इज इक्वल्स टू वॉट?
बी सी वैल्यू क्या है अपनी 25 है, बी सी की वैल्यू कितनी है 25 एंड सी डी की वैल्यू हमने निकाली है 25, सो इट विल बी इक्वल टू अवर 50 meters, correct? So this, by this way we will find it out the value of this tower, correct? So we have solved our question number 8 also. Now we are going to solving the question number 12. Okay, question number 12. What the question number 12 is saying, just read it out. The question number 12 is saying that the upper part of a tree breaks due to the wind storm. हवा चलने, तेज हवा चलने के कारण क्या हुआ, ट्री का हाफ पार्ट जो है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, नीचे गिर गया है, टूट गया, और उसने क्या बनाया, एंगल बनाया 60 डिग्री का. इट मेक्स एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री विद द ग्राउंड. द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज टू द ग्राउंड इज 10 मीटर. मीन्स इसने बोला है कि एक ट्री था जो इस तरीके से कुछ था, ठीक है, खड़ा था, उसका जो हाइट है वो हमें निकालना है. उसने बोला कि यहाँ से कुछ कहीं से वो ब्रेक होके नीचे की तरफ गिर गया, तो यहाँ से उसने क्या किया, ग्राउंड को टच किया. उसने बोला है कि जहाँ पे उसने ग्राउंड को टच किया उसकी जो बॉटम फुट से लेके उसका जो टॉप पॉइंट जहाँ ग्राउंड पे टच हुआ है वो जो डिस्टेंस है वो किसने कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है. ओके, एंड इन द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ही मेक्स एन एंगल विथ द ग्राउंड इज एन 60 डिग्री. वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री इसका टॉप ऑफ द ट्री. ओके, एंड हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट द हाइट ऑफ दिस ट्री. हमें इस ट्री की एक्चुअल हाइट निकालनी है कि उस ट्री की एक्चुअल हाइट क्या थी. ओके, सो इफ़ हियर आई से दिस इज एन H1, अगर मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ, ये जो पॉइंट है मेरा H1, यहाँ पे A B ये C और ये D है, ये यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरा जो AC है वो इक्वल टू H1 है और जो मेरा CD है वो इक्वल टू H2 है, ठीक है. ओके, एंड माई AD इज इक्वल्स टू H विच इज इक्वल्स टू दी H1 प्लस H2 होगा, करेक्ट. नाउ हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट अवर H1 एंड H2 एंड दिस पोर्शन इज आल्सो भी इक्वल टू अवर H2, क्योंकि यहाँ से ये पेड़ टूट के, यहाँ से ये जो पार्ट था ये टूट के क्या हुआ, नीचे गिरा, तो यहाँ से ये टच हुआ है, ठीक है ना. ये चीज़ इस तरीके से हुआ है, यहाँ से था वो ऐसे नीचे गिरा, तो उसने एंगल बनाया ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का, ठीक है. तो यहाँ से ये बोल रहा कि हमें इस पूरे ट्री का वैल्यू निकालना है, पूरे ट्री की हाइट कितनी थी, और उसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया है 60 डिग्री का, करेक्ट. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इट आउट हियर, वी हैविंग द वैल्यू ऑफ, हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है, AB इज इक्वल टू 10 मीटर. और मैंने क्या बताया कि एंगल के हमेशा अपोजिट साइड वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, पास वाला क्या होता है, बेस, और ये होता है अपना हाइपोटेनस. ओके, सो हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट अवर हाइपोटेनस एंड दिस परपेंडिकुलर, बोथ द टर्म्स हमें निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस की वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या पुट करूँगा यहाँ पे, मेरा फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है. हियर दिस टर्म्स इंडिकेट टू अवर साइन थीटा, दिस इज एन अवर कॉस थीटा एंड दिस टर्म इज एन अवर टेन थीटा, करेक्ट. तो हमें परपेंडिकुलर भी मिल रहा है और बेस भी मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा अपना tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अवर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है मेरा, H1 है, H1 बाई बेस कितना है मेरा 10 मीटर है. सो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 is equals to the H1 by 10 meter, as we know that the tan 60 degree is equals to the √3, correct. So H1 will be equals to our tan into √3 meter, correct. Now अगर मुझे ये चीज़ मिल गई है, अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे अब यहाँ से हाइपोटेनस निकालना है और बेस मिल रखा है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है, बेस मिल रखा है मुझे, तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, अब कॉस थीटा का यूज़ करूँगा. सो नाउ दिस इज एन माई फर्स्ट टर्म, नाउ दिस इज एन माई सेकेंड टर्म इज एट हियर, दैट इज द कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन hypotenuse. The cos theta value is 60 degree, base is in what, my 10 meter, divide by
हाइपोटेनियस इज माई H2. सो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? एज वी नो डेट द cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2. So by putting this value 1/2 equal to 10 meter divided by H2, so our H2 is equals to 20 meter, correct? So by this we have got the value of this H2 and H1 both. Now we have to find it out the value of the H. H is equals to what? H1 plus H2 होता है. H क्या है हमारा? H is equal to H1 plus H2 है. So H is equals to क्या होगा? H1 क्या आया है मेरा? 10√3 plus H2 क्या आया? 20 मीटर. So what we will get here? H is equals to the our, this is an our H is equal to the our height of tree. Okay, so this is an our answer, correct? If the value of √3 is given in our question, then we can write it here question √3 value and we solve it further. If the not given, we can stop, we can put this answer as it is. Okay, now we going further with our question number 14. The question number 14 is saying that the angle of elevation of the top of a tower from the point situated at 100 meter far from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Let us make a diagram first. It is saying that the angle of elevation of the top of the tower, first make in a top of tower, ठीक है, situated at the 100 meter far from the foot of the tower. ये बोल रहा है 100 मीटर फार है यहाँ से, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द टॉवर. ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना? 30 डिग्री का बना रहा है टॉवर के लिए. यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B एंड C. एंड वी नीड टू फाइंड इट आउट द हाइट ऑफ दिस टॉवर. हमें यहाँ से हाइट निकालनी है. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमें ऑलरेडी कर रखा है. एंगल के अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर. पास वाला हमेशा क्या होता है? बेस. हमें यहाँ पे बेस की वैल्यू दे रखी है और परपेंडिकुलर वैल्यू की निकालनी है. सो व्हाट अवर क्वेश्चन फॉर्मूला इज अवर हियर वी हैविंग टर्म्स हियर P एंड B. P एंड B किस में आता है? टेन थीटा में आता है. सो अवर टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री. सो आई विल पुट हियर 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इन व्हाट? दिस P. P means this H by base is an our 100 meter. What the value of the 30 degree? 30 degree is equals to 1/√3. So by putting this value 1/√3, I will get H by 100 meters. So H is equals to what? 100 divided by √3. As we know that the √3 is equals to what? 1.732. So by putting this value, we will get 100 by 1.732 is equal to, on solving this, we will get answer 57.73 meter, correct? So this is the height of tower is equals to the 57.73 meter. This is our answer, correct? So students, we have solved around 7 questions of the exercise 8, and you need to do the, as I have explained, the exercise 8.1 question number 1, 3, 5, 6, 8, 12 and 14. You need to do the question number 2nd, 4th, 7th, 9, 11 and 13 yourself into your notebook, and further in next video I will continue with this same exercise and we solve the next our 14 questions. Okay, so till that, good day, have a nice day, thank you.